Convention on Biological Diversity. So I had discussed what is the purpose of this convention. The purpose of this convention to take a global step to conserve the biodiversity. Because when I had discussed the agenda as well as the purpose of CBD, I had discussed that there are three basic principles behind that. And one basic principle of the this convention is to conserve the biodiversity, and second is the sustainable use of biodiversity, and third one is the equitable sharing of the products of the biodiversity as well as the biodiversity as a resources. So this is the three basic principle on the basis of which this convention has prepared. And I had discussed that why there is a need of a global convention, because with a very fast rate, we are observing the depletion of the biodiversity. The biodiversity depleted with very fast rate in the near past when you look at the trend of the decline of the biodiversity, and not in one state but globally we find such declining trend. Okay, so and once you look at the global biodiversity, then what I have discussed the differences is that the southernmost country, those who are developing in nature, basically their economy is developing or underdeveloped, having the biodiversity hotspot region. So largely the hotspot lies in the southern hemisphere, and in southern hemisphere the economy, those who are largely developing and underdeveloped. But the country, those who are harnessing, utilizing the biodiversity at a higher rates are the developed nations, where the biodiversity distribution is less. So when you look at the number of species, where they lies in more in number, whether it is the microbial species or plant or animal, it is basically the southern hemisphere states, those who are largely the developing and underdeveloped economy. So what we find that there is a gap in the resource distribution globally. Okay, there is no homogeneous distribution of resources, but who is taking advantage of their money and power? The developed world. Now the developed world in the recent past started putting pressure over developing countries to control the pollution and to control the release of the greenhouse gases. And they are also putting pressure to conserve the biodiversity. Why? Because who will be going to fulfill the needs of developed nation? Of course, the developing economies, because resources are in abundance. Now the developing state started retaliating against that pressure. So both the developing and developed nations further come on the table, sit for negotiation, and as a result of that negotiation, a convention has developed, and that convention, who is developed under the auspices of United Nations Environment Program, as I have said, that initiated to develop such strategies where a rule book has developed to conserve the biodiversity. We call that the CBD. Okay, and what I have said that about the CBD, that once you look at this convention, this conventions, when the talk begins in 1988, as I have said earlier. Okay, that in response to United Nations Environment Program convened the ad hoc working group of experts on biological diversity in November 1988. And here they emphasize on the need on the convention on biological diversity. So when they talk about the needs of such kind of a convention in year 1988, but when it was enforced in the year 1993, when in the meeting of Rio de Janeiro it was decided. Okay, so what I have said here, written here, that convention on biodiversity was opened for signature at the Earth Summit in Rio de Janeiro. So the journey begins
since 1988, but this convention has been drafted and opened for signature in year 1992, and when it enforced after the signature of almost around 156 countries in year 1993, and till this date almost 165 country has signed that. Okay, so now, and what I have said, that India is also very much concerned about the conservation of biological diversity and sustainable use of that, and thus the India also become the party in the year 1994. Later, when you talk about the step of India taken to conserve the biodiversity, we also read about the बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट. इंडिया में एक एक्ट भी बना है इन ईयर 2002. 2002 में पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया है स्पेशली टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी. दैट एक्ट इज नोन एज व्हाट? द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट, एंड इट वाज ड्राफ्टेड एंड passed by the parliament in year 2002. And under that act there is an authority which has been established, National Biodiversity Authority in India. So that is what drafting the policies and plan and helps the governments to conserve and to take measures for the conservation of biological diversity. So India is also become party. I had also discussed three principles: conservation, sustainable use, and fair and equitable sharing. Why fair and equitable sharing? As I have said that once you look at the distribution pattern of the biological diversity, the distribution is not homogeneous. Few countries having the abundant biodiversity. Okay, I had already discussed the mega biodiversity hotspot region of the world where the diversity is large in number, and certain country having very less diversity. So what is the provision under the CBD is equitable and fair sharing. Okay, and why the word fair is also because, as I have said, that developed nations using their money power, and we heard about biopiracy, theft of intellectual property rights of the underdeveloped and developing economy. And that's why the word here which is written is fair as well as equitable sharing. So you have to emphasize on the word fair. Okay, so I had already discussed, and I had discussed the guiding principle behind it, as well as, okay, I had also discussed about the National Biodiversity Strategy and Action Plan. But today I am going to discuss what are the milestones in the CBD. As I have said that the Convention on Biological Diversity, when you look at, तो मैंने इसके लिए बताया था कि COP जो है वो authorized है. There is the parties meet after every 2 years and discuss the strategies and plan, and also gives the reports. The countries individually gives the report what the steps they have taken in the past, okay, for conservation and sustainable use as well as fair and equitable sharing of biodiversity. So after every 2 years they meet. The conferences of party took place. Okay, so the first conferences, okay, where it was occur, Nassau, Bahamas. अगर आप देखेंगे Caribbean island, there is a capital Nassau. So the first meeting was convened in the year 1994, because when it was enforced in the year 1993, the Convention on Biological Diversity enforced, and after enforcement, the first meeting of the party, which is we called Conference of the Parties, the first conferences of party occurred in Nassau in the year 1994. Okay, what was the outcome of that meeting? We have to understand here briefly. So I had mentioned that is what was the outcome? Establishing scientific body on science, technical and technological advice. Okay, there was a body which was established in the very first meeting of the Conference of Parties, okay, where all the parties during that period of time, those who are the member of CBD, okay, those who have adopted the CBD and signed the CBD, sit together on the negotiating table, and they establish what? A advisory body. What is the name of advisory body? SBSTTA. And I had written here the full form of SBSTTA, Scientific Body on Science, Technical and Technological Advice.
Why there need of such body? We have to understand why there is a need. Because to conserve the biodiversity, we need some technological adaptations. अभी आपको पता है, to count the number of wild animals, we develop the collar, and through collar we track the animals through GPS. That is a technology. How a technology's development takes place without science and innovations, we cannot. So we need the scientist, we need the conservationist, and this conservationist and the science keep advising us to adopt certain measures, certain technologies, scientific tools, statistical tools to conserve the biodiversity. And that's why there is a need of such advisory body, and that advisory body was established in very first conferences of party, which was takes place in Nassau in the year 1994. So the first COP is important for you. Why? Because when the journey begins, you should keep in mind, not all the COP is important. Okay. Now, when you look at next very important COP, I am not discussing here all the COP. COP 1, COP 2, COP 3, COP 4, मैं ये सारे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ. मैं यहाँ बस आपके साथ वही COP डिस्कस कर रहा हूँ जहाँ कुछ लैंडमार्क्स डिसीजंस लिए गए या कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज डेवलप किए गए, स्टैब्लिश किए गए. मैं उसी के ऊपर एम्फेसिस कर रहा हूँ, नॉट ऑल. So for you people, the another important year for the CBD is 1999. An extraordinary COP. It is other than the regular COP. हर 2 साल पे जो COP होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस ऑफ पार्टी, उससे अलग कभी कभी जब नीड्स होती है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी COP भी बुलाए जाते हैं. यहाँ वर्ड मैंने लिखा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी COP. So it is not the COP which is regularly held after every 2 years. It is an extraordinary COP, and there is a need to convene this COP, and that's why the parties agreed, and this meeting has been takes place in Cartagena in the year 1999. Why there is a need of this extraordinary COP? To talk about the biosafety. Biosafety of what? The biosafety of the what? Organisms, whether it is plant as well as the animals, because now the cases of biopiracy has increased in the recent past. So for the biosafety protocol, so as I have mentioned here, that it was convened, the Cartagena extraordinary COP was convened in the year 1999. Why? To adopt the biosafety protocol. So this biosafety protocol is very important for you. Okay. Biosafety protocol, you have to keep in mind this term. Okay. However, I have mentioned that it was failed, dissolved after 2 days, since delegates failed reach on agreement. लेकिन इस बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल्स के ऊपर जो ड्राफ्ट पेपर था, उस पर पार्टीज के अमंग में क्या हो गया? अमंग द पार्टीज देयर इज नो यूनैनिमिटी ओवर दैट. ठीक है. और इसके कारण वो मीटिंग बीच में ही रोकनी पड़ी आफ्टर 2 डेज. ठीक है. क्योंकि डेवलपिंग और डेवलप वर्ल्ड्स उसके ड्राफ्ट को लेकर, ठीक है, आपस में रेडी नहीं थे, उसमें वो चेंजेस चाहते थे, तो वो मीटिंग बीच में ही रोकनी पड़ी और एंड रिजल्ट कुछ खास नहीं निकला. पर बाद में वो बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल वाज अडॉप्टेड बाय सेवरल कंट्रीज एक्सेप्ट फ्यू. कुछ कंट्रीज को छोड़कर उसको प्रोटोकॉल को क्या किया गया? अडॉप्ट किया बहुत सारे कंट्रीज ने. तो हम उसे कार्टाजेना प्रोटोकॉल कहते हैं या द प्रोटोकॉल फॉर बायोसेफ्टी कहते हैं. तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल हैज बीन आस्क्ड सेवरल टाइम इन डिफरेंट एग्जामिनेशंस. So that protocol is important. That's why I have mentioned that the next year, in the very next year, the first meeting of the Intergovernmental Committee for Cartagena Protocol in Montpellier, they meet. तो क्या हुआ कि ये जो प्रोटोकॉल बना था बायोसेफ्टी के लिए, इसके ऊपर मैंने कहा कि 1999 में डिसीजन लिया नहीं गया. क्यों? क्योंकि डिफरेंसेस क्रिएट हो गए बिटवीन डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज, एंड दैट्स व्हाई द मीटिंग वाज
After 2 days, dissolved this. Later, a intergovernmental committee has been formed. Intergovernmental committees का मतलब क्या है? जितनी पार्टीज हैं उन्होंने मिलकर कुछ रिप्रेजेंटेटिव रखे और वो रिप्रेजेंटेटिव अब इस प्रोटोकॉल्स के ऊपर बात करने के लिए उन्होंने 2000 में एक मीटिंग कन्वीन की। तो ये स्पेशली मीटिंग किसके लिए हुई है? कार्टाजेना में जो ये बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल बना उसके ऊपर डिसीजन लेने के लिए ये मीटिंग स्पेशली कन्वीन की गई इन द वेरी फर्स्ट ईयर 2000। ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि मैंने अभी कहा था कॉप हर 2 साल पे होता है, आफ्टर एवरी 2 years। ये जो तुम देख रहे हो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉप है। ये वर्ड याद रखना, जब भी आप देखेंगे या न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो ये जहां भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉप वर्ड लगा होगा इट मीन्स इट इज नॉट अ रेगुलर कॉप। जब अर्जेंट नीड होती है तो ये मीटिंग कन्वीन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन यहाँ ये मैंने लिखा कि इट वाज अ फर्स्ट इंटर गवर्नमेंटल कमेटी मीटिंग स्पेशली फॉर दिस पर्पसेस। यहाँ जो बात रुक गई है उसके ऊपर बात करने के लिए ये मीटिंग कन्वीन की गई। तो ये एक स्पेशल मीटिंग है। It is not extraordinary COP. It is a special meeting which is convened especially to talk on the biosafety protocol, or we popularly known as Cartagena protocol. इसके लिए ये कन्वीन किया। तो क्या यहाँ कुछ आउटकम आया? हाँ आया। यहाँ पर कुछ पार्टीज ने कार्टाजेना प्रोटोकॉल को साइन किया, अडॉप्ट किया उसे। नॉट ऑल, ओके, because not all the countries are ready. So that's why what I have mentioned, that to review the biosafety clearinghouse which is mentioned under the biosafety protocol, और कार्टाजेना प्रोटोकॉल में एक biosafety clearinghouse mention किया गया था, उसको रिव्यू करने के लिए ये मीटिंग कन्वीन हुई, उस पर चर्चा हुई, बात हुई। बट मैंने यहाँ लिखा है अर्जेंटीना पुल्स आउट ऑफ अलायंस विथ यूएसए। पर इस अलायंस से कौन बाहर निकल गया? अर्जेंटीना, द साउथ अमेरिकन कंट्री, एज वेल एज यूएस इज नॉट रेडी। So what I have said, that certain countries retreat back from the alliance, and what are the major country which retreat back? Argentina and USA retreat back. But the other parties had adopted that Cartagena protocol on biosafety. तो क्वेश्चन प्री में क्या आएगा कि बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल कहाँ पर एस्टैब्लिश किया गया? कार्टाजेना मीटिंग्स में। दैट इज ऑल्सो नोन एज कार्टाजेना प्रोटोकॉल। एंड which country has retreat back from that? The USA, the North American country, and Argentina, the South American, because once the USA is not ready, Argentina is also not ready for that. Okay, so there is a conflict, as I have said, between developed and developing economy. Okay, so as industrialized countries propose that parties to CPB, okay, this Cartagena biosafety protocol not have direct oversight over BCH। बोला कि ये जो बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस है इसमें डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं है डेवलप्ड नेशंस का, इसके ऊपर कमांड नहीं है, इसलिए द यूएस इज नॉट एग्रीड टू साइन दिस प्रोटोकॉल। एंड वंस यूएस इज नॉट ready to sign this protocol, the Argentina also quit from this alliances. Now here I have mentioned that what is under the Cartagena protocol on biosafety. So what I have mentioned, that Cartagena protocol on biosafety and its Nagoya Kuala Lumpur supplementary protocol on liability and redress. Okay, फर्दर हम लोग नागोया के ऊपर भी बात करेंगे। नागोया इन जापान, वहां पे आइशी प्रीफेक्चर में एक मीटिंग हुई थी। दैट मीटिंग इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वंस यू लुक एट what I am going to elaborate here, this biosafety protocol. So what I have mentioned, that the Cartagena protocol on biosafety, the biosafety protocol which was adopted and came in the Cartagena, it also known as Cartagena protocol on biosafety, okay, the same is an additional agreement, okay, to the Convention on Biological Diversity. What it is? Additional agreement. Additional agreement, especially keeping in mind the biosafety of the biodiversity. Now,
The Cartagena Protocol on Biosafety was adopted on 29th of January 2000. When the meeting was convened, मीटिंग कब हुआ था? कार्टाजेना में, अभी बताया था पीछे, when it was, and when the meeting was held on the Cartagena Protocol in 2000. In that meeting, what I have said that despite the US and Argentina quit the alliances, but other parties agreed and adopted it. So when the other parties adopted this protocol on the 29th of January 2000. Am I clear to all of you? When the country adopted, when the parties adopted this protocol on biosafety in the year 2000, when a special meeting has been held, इंटरगवर्नमेंटल कमेटी की जब मीटिंग हुई थी उसमें ये अडॉप्ट किया, ठीक है. नेक्स्ट, and entered into force on 11th September 2003. This fact is important for you people. You must keep in mind because sometimes the fact has been asked in a screening paper, okay, and that's why I have mentioned the date. And I had mentioned only the few important date which is important related to CBD, okay. So when it was entered into force, the protocol on biosafety had entered into force in the year 2003. ओके, सो अभी तक आपके लिए क्या क्या ईयर इंपॉर्टेंट था? 1992 व्हेन द अर्थ समिट वाज हेल्ड, 1993 व्हेन द CBD was enforced. Am I clear to all of you? Then what I have said that in 2000, the year 2000 when the biosafety protocol adopted, but when it was enforced in the year 2003. So this is the timeline which is important related to CBD till now. अभी तक जितने मैंने इवेंट डिस्कस किए उसमें ये 4 साल जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू CBD. सो यू कैन डेवलप अ टाइमलाइन इन योर माइंड. सो इन प्रीलिम्स व्हेन यू फाइंड आउट सच फैक्ट्स यू फील वेरी कंफर्टेबल. तो आपको ये टाइमलाइन बनाना होता है. अभी जब हम क्लाइमेट चेंज भी पढ़ेंगे उसके लिए जो मीटिंग्स पढ़ेंगे उसके लिए जो कॉप पढ़ेंगे दैट वाज अ सेपरेट कॉप. अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जब तुम पढ़ोगे उसके लिए फिर सेपरेट स्ट्रैटेजीज है. तो क्या होगा, यू हैव टू सेग्रीगेट दिस टाइमलाइन, अदरवाइज द chaos क्रिएट इन द एग्जाम हॉल. फिर समझ नहीं आएगा कि ये CBD की बात हो रही है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है, वो सब मिक्सअप हो जाएगा. एंड दैट्स वाई you have to develop a timeline inside of your notes, okay. So this is the timeline which is important, okay. डेट इतना भी important नहीं है, कभी कभी एग्जैक्ट डेट नहीं बट ईयर याद करो, फिर डेट धीरे धीरे आपको याद ही हो जाएगा, okay. Now when you look at what is the aim of this, and I have mentioned that as of the May 2011, 160 countries and the European Union also have ratified or acceded to the protocol. Ratification means they had passed in their parliament this and adopted this protocol. What is the ratification? After signature on this protocol, the parties ratified in their own parliaments, okay, and passed it. Then it is known as ratification. When this protocol passed by the individual nations in their parliament, they agreed on the term and conditions, then we called it ratification. So how many countries have ratified till 2011? 160 countries. That figure is not so much so important, but you have to understand it. The term signatory, अभी signatory सभी नहीं है, मैंने आपको कल बताया था. 196 countries are parties, but all are not signed the CBD. उन्होंने सारे ने साइन नहीं किया. फिर साइन करने के बाद रैटिफिकेशन सभी कंट्री ने अपने पार्लियामेंट से भी पास नहीं किया है. तो ये समझना होगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस टर्म कि एडॉप्शन या पार्टी बन जाना, पार्टी के बाद साइन करना, साइन करने के बाद रैटिफाई करना, ऑल दीज आर डिफरेंट प्रोसेसेस. एंड यू फाइंड दिस वर्ड when you are learning the climate change and related issues as well as related protocol like Kyoto Protocol, Paris Declaration. फिर वहाँ देखोगे कि कितनी पार्टी मेंबर है, कितने ने साइन किया है, कितने ने रैटिफाई किया है. तो ये जो टर्म्स है, that term is again, this vocabulary is very important for you people. You have to understand when you
you can use this vocab. So in the mains writing, you have to understand it. You must be pretty clear कि when I have to write the this country is party, this is signatory, this party has ratified it. Okay, so be clear here. Now, what is the aim of this protocol? Try to understand why there is need of a biosafety protocol. Why the world is concerned about it. Okay, try to understand the need. So understand the aim of the biosafety protocol, which is also known as Cartagena protocol on biosafety. Okay, time and again you repeat this word. It aims to ensure the safe transport, handling and use of living modified organism. Living modified organism like genetically modified organism. So you have to keep in mind this term LMO like ZMO. Okay, because sometimes this word has been asked in examination. So living modified organism. So what is the aim of biosafety protocol? Safe handling of the organism, because as you know, the organism and their product is traded among the countries. उसका सेल परचेज होता है, वो सेफ होना चाहिए. अभी मैंने आपको बताया था कि कई बार ऐसा हुआ कि एक्सोटिक स्पीसीज बाहर से आई और उन्होंने एनवायरनमेंट को खराब कर दिया. आई हैड ऑलरेडी डिस्कस what is the threat to the biodiversity. In that threat, one threat was what? The exotic species. So if you are handling the exotic species, the biosafety protocol is again very important, because once the exotic species ruin the environment, damage the environment, who will give the compensation? Now the question arises. So if you are trading any species, if you are trading the product of that species having the harmful impact on the environment, who will take care of that? So in the present time period, that issue also raised among the parties. Getting my point? And that's why this safety protocol has been designed. Am I clear to all of you? इसीलिए वर्ड है सेफ ट्रांसपोर्ट. जब आप शेयर करेंगे एक कंट्री से दूसरे कंट्री, ट्रांसपोर्ट मस्ट बी सेफ. उससे कोई डैमेज नहीं होना चाहिए, कुछ उसका रिपरकशन नहीं होना चाहिए, बैड इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए. और इफ यू आर हैंडलिंग एंड यूज ऑफ द लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म रिजल्टिंग फ्रॉम द मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, ये लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कैसे तुम बनाओगे? बाय द यूज ऑफ द बायोटेक्नोलॉजीज. By use of genetic engineering, we are developing the genetically modified organism, whether crops or animals, transgenic crops or transfected animals. Okay, तो हम क्या कर रहे हैं आजकल, उसमें कैसे बना रहे हैं? By using biotechnology. So if you are using that technology, if you are modifying any organism, whether it is a plant species or animal, you must handle very carefully under this protocol. Okay. And that may have adverse effect on the biodiversity. अभी क्या है? There is a ethical concern. मैंने कहा कि जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ोगे तो हर टेक्नोलॉजी से एथिकल इश्यूज भी अटैच्ड है, रेज्ड होते. जैसे जब इंडिया में पहली बार बीटी कॉटन लॉन्च हुआ तो इश्यूज रेज हुआ. Whether the BT cotton is only harmful for lepidopterans, one which is known as bollworm. Question ये है कि why we are using this cotton? Because this cotton having the gene of Bacillus thuringiensis, a bacteria. This bacteria having a DNA or a gene, you can say the sequence of DNA, we call that gene. The bacteria having a gene, when that gene express, it forms a protein. Okay. When the gene express, what it forms? A protein, and that protein is a toxin. That is a poison. Poison for what? Poison for an insect. What is the insect? The bollworm. What we did that? We just
take that DNA or gene, insert it into the cotton. Now cotton is now generating that protein which is harmful and poisonous for what? That worm which we call bollworm, that insect. So insect repellent protein is now created in a cotton. That's why वो इंसेक्ट क्या करता था, जब बॉल लगते थे कॉटन के, कपास के, उसको वो खा जाता था. अभी क्या है, उससे सेफ्टी मिल गई. So by using this biotechnological tools of genetic engineering, we transfers the DNA or the gene of bacteria into a plant, and we develop a living modified organism or genetically modified organism. But the question arises, the ethical concern arises, the insects are also the pollinators for the various plants. इंसेक्ट जो है पॉलिनेट करते हैं, तो पॉलिन ग्रेन ट्रांसफर करते हैं. अब सारे इंसेक्ट अगर वहां से रेपेलेंट होने लगे, भागने लगे ड्यू टू डेट पॉइजन, ठीक है, या डाई करने लगे, तो फिर क्वेश्चन ये होगा कि क्या केवल बॉलवर्म को ही हार्म पहुंचा रहा है ये टॉक्सिन या दूसरे भी इंसेक्ट्स को. द क्वेश्चन अराइजेज इन द माइंड ऑफ द साइंटिस्ट. तो फील्ड ट्रायल किए जाते हैं. ऐसा नहीं कि आपने जेनेटिकली मॉडिफाइड कोई प्लांट लैब में बनाया और सीधा फील्ड में इंट्रोड्यूस कर दिया. पहले ट्रायल्स किए जाते हैं कि उसके हार्मफुल इम्पैक्ट्स तो नहीं आ रहे हैं एनवायरनमेंट के ऊपर. अगर लार्जली उसके हार्मफुल इम्पैक्ट नहीं आ रहे हैं तभी वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है, फार्मिंग के लिए. तब वो फार्मर्स को दिए जाते हैं सीड्स, ठीक है, अलाउ करता है कंट्रीज. लेकिन एनवायरमेंटलिस्ट का कंसर्न अभी भी है कि बॉलवर्म के अलावा अदर इंसेक्ट्स भी क्या हो रहे हैं, उस रीजन से धीरे धीरे ग्रेजुअली खत्म हो रहे हैं. तो पॉलिनेशन इफेक्ट होगा, साइकिल वो डिसरप्ट होगा. तो ये बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल इसलिए भी बनाया गया है कि ऐसा कुछ हार्मफुल इम्पैक्ट अगर एनवायरनमेंट के ऊपर हो रहा है, उससे अगर वहाँ के फार्मर्स या इकोनॉमी अफेक्ट हो रही है, तो who will give the compensation to it? Whether the company, those who had developed that LMOs, whether the countries, those who share or trade that LMOs to the other countries. आप अगर लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म डेवलप करो और ट्रेड कर दो दूसरे को, और वहां जाकर उसकी इकोनॉमी को या उसके एनवायरमेंट को हार्म पहुंचाए, तो कौन देगा कंपनसेशन? ये बात की गई है, वो देगा जो सेल किया, जो बेचा है, जो डेवलप किया था. आपके ऊपर लायबिलिटीज बनती. और डेवलप कौन ज्यादा कर रहा है? ऑफ कोर्स द डेवलप्ड इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, दे हैव द टेक्नोलॉजीज. और सर्टेन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक चाइना और इंडिया, लाइक दैट, जहाँ साइंस डेवलप है, ये डेवलप कर रहे हैं, वी आर डेवलपिंग. सो वेरी फ्यू कंट्रीज हैविंग दिस इंफ्रास्ट्रक्चर. तो हमें उनके बारे में भी सोचना है, दोज हु आर द पुअर कंट्रीज. ऐसा नहीं हो कि उनका एनवायरमेंट लॉस हो या उन्हें हार्म हो. गलती से या सही से आपको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, ठीक है. तो दिस इज द एजेंडा ऑफ द बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल कि कुछ भी करना है तो सोच कर करना है. अब पहले से प्रिपेयर हो जाओ. इसलिए मैंने क्या कहा, फील्ड ट्रायल. जैसे बीटी ब्रिंजल वोंट अलाउड इन इंडिया इनिशियली. व्हाई? बिकॉज एनवायरमेंटल कंसर्न्स आर देयर, डिस्पाइट वी हैव डेवलप्ड बीटी ब्रिंजल. फील्ड ट्रायल में हमने उसके हार्मफुल इम्पैक्ट देखे, प्रोडक्शंस भी उतना बेहतर नहीं देखा जबकि इनिशियल स्टेज में था, लेकिन इंट्रोड्यूस होने से रोका, मोरेटोरियम लगाया. क्यों? कि अभी उसके और भी फील्ड ट्रायल्स होने ज़रूरी थे, ठीक है. मस्टर्ड भी प्रिपेयर किया. तो इस तरह से वी आर ऑल्सो डेवलपिंग वेरियस एलएमओज, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. ओके. सो यहाँ क्या है, प्रोटोकॉल के तहत हैंडलिंग सेफ होनी चाहिए, ठीक है ना. So this is, and also taking into account risk to human health. एक और एथिकल कंसर्न क्या डेवलप हुआ कि ये जो बैक्टीरियल स्ट्रेन है, दैट इज बैक्टीरियल डीएनए व्हाट वी हैड इंसर्टेड इन कॉटन. अभी पता है कि कॉटन के सीड से ऑयल भी बनते हैं, एंड इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री द पीपल यूज दैट ऑयल ऑल्सो, ठीक है. दूसरी बात है कि जब ऑयल्स फॉर्म किया जाता है, जब ऑयल आप बनाते हैं मस्टर्ड से, कॉटन से या अदर कैस्टर सीड्स से, व्हाटएवर भी, तो फिर ऑयल केक्स भी बनते हैं
जो उसके रेसिड्यू बच जाते हैं, ऑयल केक जानवरों को खिलाते हैं लोग, खल्ली कहते हो, ठीक है, जानवरों को खिलाया जाता है। अब द क्वेश्चन है कि अगर वो ऑयल केक या खल्ली जानवरों को खिलाया जा रहा है तो क्या जानवरों के ऊपर उसके बैड इंपैक्ट होंगे, क्योंकि उस सीड्स के अंदर बैक्टीरियल डीएनए भी है। अगर एनिमल्स यानी ह्यूमन बीइंग अगर उस तेल में पकौड़े छान के खा रहा है तो क्या उस इंसान के ऊपर भी कुछ बैड इंपैक्ट होगा क्या हेल्थ के ऊपर? बिकॉज द डिफरेंट पीपल हैविंग डिफरेंट इम्यूनिटी कंडीशंस, few people are allergic to something। बात समझ में आ रही है? कुछ लोग एलर्जिक भी होते हैं। तो क्वेश्चन ये है, हम बहुत ये जो बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल है वो हर एक डिमेंशन के बारे में सोचता है। वो ये भी सोचता है कहीं ह्यूमन हेल्थ तो अफेक्ट नहीं होगा। व्हेन यू डेवलप बीटी ब्रिंजल, उसमें बैसिलस thuringiensis का डीएनए है, तो कहीं वो बैगन आपके लिए हार्मफुल तो नहीं होगा, हेल्थ के ऊपर इंपैक्ट नहीं है। डिस्पाइट द साइंटिस्ट हैज टोल्ड अस कि नो, देयर इज नो इंपैक्ट ऑन द ह्यूमन हेल्थ। उन्होंने ट्रायल भी किए, पर ये कंसर्न भी है, दैट एथिकल कंसर्न आल्सो रेज। ओके, ऐसा तो नहीं है ना कि हम 2-3 इंसानों पे जांच कर लें और फिर हम डिक्लेयर कर सकते हैं, नहीं, वी हैव टू ट्राई इट on a longer population, on a large population, not longer, a large population, then we can say that no, there is no harmful effect. So this protocol also talk about, the Cartagena protocol on biosafety also talk about, you must be clear that there is no harmful effect on a human life, on animal life, as well as on environment when you are handling such organism. So you can understand the importance of this Cartagena protocol and why this protocol is frequently asked in a question. Okay. So I had mentioned here, and the protocol establishes procedures for what? Procedure for regulating the import and export of living modified organism from one country to another. इस बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल में प्रोसीजर भी लिखे गए हैं कि अगर तुम ट्रेड करते हो, अपने लैब में प्रिपेयर करते हो जीएमओ, और अगर उसका ट्रांसफर करते हो, ट्रेड करते हो, तो क्या प्रोसीजर आपको अडॉप्ट करना होगा। दिस इज ऑल्सो मेंशन्ड इन द कार्टाजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, एम आई क्लियर, विच वाज अडॉप्टेड इन द ईयर 2000। नाउ तो इतनी बात तो समझ आ गई होगी why there is a biosafety concerns. Now let's find out the other dimension. This is the backbone of the entire study of the biodiversity. Contemporary scenario एक बार समझ जाएंगे, आगे की सारी मीटिंग इसी के ऊपर बेस्ड होती है। तो कभी भी कोई भी कॉप होगा, इन्हीं पे चर्चा होगी आगे फर्दर। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस वंस, तो फिर आप फर्दर जितनी भी मीटिंग होगी यू कैन इजिली अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन। देयर आर 2 मेन सेट्स ऑफ प्रोसीजर। अब मैंने यहाँ थोड़ा प्रोसीजर्स के बारे में एलेबोरेटली डिस्कस किया है कि जब एलएमओज, वन कंट्री हैज डेवलप्ड द एलएमओज, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, एंड ट्रेडिंग विद द अदर्स, उसको एक्सपोर्ट कर रहा है या कहीं से मंगा रहा है कोई कंट्री, तो क्या प्रोसीजर फॉलो करने हैं? So 2 sets of procedures the country has to follow. What? One for the LMOs intended for direct introduction into the environment. एक तो जैसे क्या है कि आपने लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाया, आपके ऑर्गेनिज्म को किसी कंट्री ने परचेज किया, और परचेज करने के बाद सीधा फील्ड में जाकर एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस कर दिया उसे विदाउट और ट्रायल इन अ स्पेसिफिक एरिया, बिना उसके इन्फ्लुएंस को देखे हुए उसने एनवायरनमेंट में कर दिया। उसके लिए भी प्रोसीजर है, ठीक है, नोन एज द एडवांस इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट। उसे क्या बोलेंगे? AIA, उसके लिए टर्म है, एंड दिस टर्म इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर यू। वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक वोकैब तुम्हें क्या मिला? AIA। What is it? Advanced Informed Agreement.
informed agreement. When we called, what is this advanced informed agreement? Once the LMOs intended to direct introduction to the environment. ठीक है, तब ये टर्म यूज होगा. टर्म इज इंपॉर्टेंट एज आई कीप एम्फेसाइजिंग. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए. प्रोसेसर and another for LMO intended for direct use as food or feed or for processing. इसको क्या बोलते हैं? LMOs FFP. What is FFP? Food or feed for processing. Okay, what is FFP? Food or feed for processing. तो डायरेक्ट यूज करोगे एज अ फूड, इसके लिए भी क्या है? प्रोसेसर. जैसे मैंने कहा कि कॉटन के सीड से ऑयल बनाया, यूज किया एज अ फूड. बीटी ब्रिंजल को डायरेक्ट एज अ फूड. प्रोसेसिंग, आप प्रोसेस करके कुछ और प्रोडक्ट बना सकते हैं फ्रॉम दैट. सो फॉर दैट पर्पसेस ऑल्सो देयर इज अ प्रोसेसर विच इज रिटेन वेयर इन द कार्टाजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी. तो दो चीजों के लिए प्रोटोकॉल्स के अंदर स्पेशल एम्फेसिस है व्हेन यू आर ट्रेडिंग. ओके, अगर आप इंपोर्ट करते एक्सपोर्ट करते हैं तो दो कंसर्न है वहाँ. पहला कि लेने के बाद या आप डायरेक्ट फील्ड में इंट्रोड्यूस करते हैं. दूसरा, जो आप फूड कंज्यूम करेंगे बेस्ड ऑन दैट प्रोडक्ट, या प्रोसेसिंग करके कुछ नया प्रोडक्ट बनाओगे उसी से, उससे एलएमओ से, तो उसके भी इम्पैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए अलग प्रोसेसेस दिए गए. So there are two set of procedure which is mentioned under the Cartagena Protocol on Biosafety. One is known as AIA, another is known as LMO's FFP. Am I clear to all of you? ये दो terms आपके दिमाग में होने चाहिए when you are writing about Cartagena Protocol on Biosafety in mains. You must mention it. You must mention these two terms. Okay? Now, अब जब मैंने यहाँ मेंशन किया कि अच्छा AIA है और LMOs FFPs है, तो मैंने फिर इस प्रोसीजर को भी थोड़ा इलेबोरेट किया कि व्हाट इज AIA प्रोसीजर एंड व्हाट इज द LMOs FFP प्रोसीजर. लेट्स सी. ठीक है, व्हाई आई एम डिस्कसिंग? बिकॉज द कार्टाजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी मे बी अ शॉर्ट नोट्स, because continuously the talk is going on in different COPs over this protocol. This protocol is a very much concerned area under the CBD. Okay, so let's understand. And once you have to understand it in detail, आपको एक बार समझना है कॉन्सेप्ट, उसके बाद बार बार इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है. ठीक है, अंडर द AIA प्रोसीजर. AIA प्रोसीजर कब है? जब डायरेक्ट एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस करना हो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को. ठीक है, तो ये प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा. इसमें क्या लिखा है? अ कंट्री इंटेंडिंग टू एक्सपोर्ट एन LMOs, ओके, फॉर इंटरनेशनल रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट. ठीक है, क्या होगा? मस्ट नोटिफाई इन राइटिंग द पार्टी ऑफ इंपोर्ट बिफोर द फर्स्ट प्रपोज्ड एक्सपोर्ट टेक्स प्लेस. नोटिफिकेशन देगा इन राइटिंग. ओके, द पार्टी ऑफ इंपोर्ट मस्ट एक्नॉलेज रिसिप्ट ऑफ द नोटिफिकेशन विद इन 90 days and must communicate its decision on whether or not to import the LMOs within 270 days. मैंने कोई LMOs डेवलप किया अपने लैब के अंदर, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, बाय यूजिंग द जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज. आप मुझसे लेना चाहते हो वो LMOs, तो मैं पूरा डिटेल्स उस LMOs का आपको इन राइटिंग दूंगा कि उसके क्या डेवलपमेंटल प्रोसीजर रहे, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसके क्या हार्म्स हैं. आई विल डिस्कस ऑल दिस इन डिटेल्स बाय राइटिंग. राइटिंग में दूंगा.
विद इन 19 डेज अगर हमारा एग्रीमेंट बना है। फिर आप बाय रीडिंग दैट कि उसके क्या प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, आप मुझे 270 डेज के अंदर बताओगे कि वेदर यू आर इंटरेस्टेड टू टेक इट और नॉट। बात समझ आ गई अभी तक जो मैंने डिस्कस किया? Parties are required to ensure that their decisions are based on the risk assessment. जो पार्टी परचेस कर रही है वो इस बात पर एग्रीड होगी कि मैं जो लिख के आपको दे रहा हूं कि ये रिस्क हो सकता है, आपने असेस कर लिया होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं यहाँ पे? क्योंकि रिस्क हो सकता है ना, ऑलरेडी आई हैड टोल्ड व्हाट इज द बेनिफिट एंड व्हाट इज द रिपरकशन ऑफ दिस LMOs. Okay, technologies interference which must be carried out in scientifically sound and transparent manner, and once a party take decision on LMO, it is required to communicate the decision as well as summary of the risk assessment to the central information system. जब दोनों पार्टी तैयार हो जाएंगे, रिस्क असेसमेंट हो गया, तैयार है कि नहीं ठीक है मैंने रिस्क पढ़ लिया है फिर भी मैं एग्रीड हूं, तब वो किसको सूचना देंगे? सेंट्रल इंफॉर्मेशन सिस्टम को, द बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस। एक अलग से बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस बनाया गया है, मैंने बताया था ना, जिसके ऊपर अर्जेंटीना और US एग्रीड नहीं होकर उन्होंने वो निकल गए थे उस प्रोटोकॉल से। उस बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस के अंदर एक क्या है? सेंट्रल इंफॉर्मेशन सिस्टम। पार्टीज उसको इन्फॉर्म करेगी कि वी आर गोइंग टू ट्रेड दिस बाय रीडिंग ऑल द रिस्क्स। Am I clear to all of you what is the AIA procedure? So this is the process. Now understand the next procedure which is known as LMOFFP. ये क्या है इसके अंदर? देखें इसको। Let's see. Under this procedure, the parties that decide to approve and place such LMOs on the market, because this is for the consumption as a food or for processing, ठीक है, तो फूड प्रोडक्ट बना के तुम मार्केट में लॉन्च करने वाले हो, ठीक है। So decided to approve and place such LMOs on the market are required to make their decision and relevant information including the risk assessment report. इनको भी क्या करना पड़ेगा? About that product, the company or the parties or the country has to give a details. आपको उस LMOs के बारे में डिटेल बताना पड़ेगा कि उसके क्या रिस्क फैक्टर है, रिस्क असेसमेंट के बारे में भी, बिफोर लॉन्चिंग इन द मार्केट एज अ फूड प्रोडक्ट। आप अगर, मैंने कहा बीटी बैगन आपने उगाया है, उसको मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं, तो ऑलरेडी उसके बारे में आपको सारे डिटेल्स देने होंगे और उसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में भी बताना होगा। रिस्क असेसमेंट कंपलसरी है ये LMOs FFP के तहत, क्योंकि लोग अगर उसे परचेज करें तो उन्हें पता होना चाहिए क्या ये एलर्जी कॉज कर सकता है कुछ लोगों में। क्योंकि जब आप मेडिसिन या ड्रग्स लेते हो तो उसमें लिखा होता है कि कीप इट एट अ कूल प्लेस, ठीक है ना, फार फ्रॉम सनलाइट, इट मे पोजेस एलर्जी, एलर्जी कॉज करता है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर्स लिखे रहते हैं ना। तो यहाँ भी डिटेल्स बता देना है, रिस्क असेसमेंट एंड पब्लिकली अवेलेबल थ्रू द BCH, और इसको BCH जो है वो पब्लिक अवेलेबल करेगा, आप BCH को बताएंगे, ठीक है। बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस को तुम डिटेल्स में लिख कर दोगे और ये BCH अपने पोर्टल पे डालेगा, सो एवरीवन कैन असेस द रिस्क फैक्टर व्हेन दे आर हैविंग दैट LMOs एज अ फूड, ठीक है। तो मैंने कहा जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स भी बनाए जा रहे हैं, प्लांट भी डेवलप किए जा रहे हैं, तो उनके प्रोडक्ट्स भी होंगे। गेटिंग माय पॉइंट? so there is a product of that also. So you should keep in mind that now the protocol also require parties to ensure that LMOs being shipped from one country to another are handled, packaged and transported in a safe manner
and the shipment must be accompanied by documentation and clearly identified the LMOs specifies any requirement for the safe handling, storage, transport and use, provide contact details for further information. So what is important here to understand is what I have said, that in the Cartagena protocol on biosafety, what I have said here, if a countries develop the living modified organism, okay, by changing their gene composition and all, for example genetically modified organism, crops or animals, okay, then when they are trading it, they should take care of two procedures. One is AIA, another is LMO FFP. When they had to follow this procedure, once the LMOs introduced directly in the environment, तो मैंने क्या कहा, AIA के तहत जब LMOs को डायरेक्ट इन्वायरमेंट में इंट्रोड्यूस करना हो तो ये प्रोसीजर AIA के नाम से जो प्रोसीजर है वो फॉलो करना पड़ता है कंट्रीज को। वह कंट्रीज जो LMOs डेवलप की है, जो कंट्री परचेज करेगा उस प्रोडक्ट को, उसके बारे में डिटेल्स प्रोडक्ट के बारे में लिख कर देंगे कि उसके क्या पॉजिटिव डिमेंशन है, क्या उसके निगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, रिस्क असेसमेंट के बारे में, एंड इफ द कंट्री इज रेडी टू टेक दैट LMOs, वो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा मैंने बताया LMOs FFP, ये प्रोसीजर किसके लिए है, जब LMOs को यानी लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को लाइक बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉटन को फूड के तौर पे यूज करना है या फूड प्रोडक्ट्स बनाने हैं बाय यूजिंग अ प्रोसेसेस। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होगा कि द कंट्री दोज हु डेवलप द LMOs, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जिस कंट्री ने बनाया है, वो कंट्री क्या करेगा, वो कंट्री रिटेन में देगा किसको, BCH को। BCH क्या है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल के तहत एक हाउस बनाया गया है, बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस। इस बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस को वो डिटेल्स देंगे कि इस जो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को हमने बनाया है उसके फायदे क्या हैं और उसके निगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं। BCH का काम है उसे पोर्टल पे डालना, पब्लिक करना, पब्लिक उसे देखे, अगर लेना है तो ठीक है, नहीं लेना तो आपकी मर्जी। आप ये नहीं कह सकते कि आपको प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स पता नहीं था। ठीक है, तो दिस इज कम्स अंडर Cartagena protocol on biosafety. This two procedure is there. Now what is another? Again, I have discussed here the another dimension of Cartagena protocol on biosafety. Why I have discussed in detail Cartagena और नागोया, इन्हीं पर क्वेश्चन ज्यादा आते हैं CBD से, क्योंकि ये बेस है। नेक्स्ट, the Cartagena protocol is reinforced by the Nagoya Kuala Lumpur supplementary protocol on liability and redress. बाद में अब क्वेश्चन ये हुआ कि अच्छा चलो इसके बावजूद कंट्री ने ले लिया लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, लेकिन अगर उसके निगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो या निगेटिव हेल्थ इम्पैक्ट हो गए तो क्या होगा फिर? Who will bear the who will take the liability of it? तो यहाँ liability clauses भी ऐड हुए। कब ऐड हुए? थ्रू द नागोया एंड कुआलालंपुर मीटिंग। बात समझ में आए? फर्दर मीटिंग्स में लायबिलिटीज भी तय की गई कार्टाजेना की मीटिंग के बाद जहाँ प्रोटोकॉल बने थे। ठीक है, सो व्हाट आई हैव मेंशन्ड दैट द कार्टाजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, उसमें ऐड करना है। ठीक है, is reinforced by the Nagoya Kuala Lumpur supplementary protocol on what? On liability and redress. ठीक है,
which is adopted on 15th of October 2010. एक ईयर और ऐड हो गया ना. Where? In Nagoya, Japan. Nagoya is a city in Japan. अब देखो यहां पर एक टारगेट्स भी लिए गए हैं आगे में. नागोया मीटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, वहां कुछ टारगेट्स भी डेवलप किए गए थे. उसे कहते हैं, वहाँ एक जो मीटिंग हुई थी वो एक स्पेशल एरिया में हुई थी, उसे कहते हैं आयशी प्रीफेक्चर. तो उसे आयशी क्या कहते हैं, ऐशी टारगेट. अभी मैं उसके बारे में भी बताऊंगा. In Nagoya 20 targets has been taken, drafted. Now दिस सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल, इसका नाम है सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल. ये प्रोटोकॉल किसको सप्लीमेंट करेगा, यानी कुछ पॉइंट मिसिंग थे कार्टाजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, ये एडिशनल तैयार किया गया है, सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल है. सप्लीमेंट किसको कर रहा है, कार्टाजेना, और उसको बेहतर बनाने के लिए. क्या ऐड हुआ, लायबिलिटी क्लॉजेस एंड रिड्रेस. हु विल रिड्रेस, हु विल टेक द लायबिलिटी इफ द एलएमओज हैविंग द नेगेटिव इंपैक्ट ऑन एनवायरमेंट and on the health of the human being. Who will take the liability and who will redress that? This supplementary provision also added when it was added further in Nagoya and Kuala Lumpur meetings. Getting my point? समझ आ रही है बात? तो देखो फिर इसके सिग्नेचर के लिए कब इसे ओपन किया गया, 2011, and will remain open for signatures till the 6th March 2012. इस बीच में, and it will enter into force 90 days after being ratified by at least 40 parties to the Cartagena Protocol on Biosafety. कार्टाजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी जितने देशों ने साइन की थी उसमें से मिनिमम 40 देश फिर से इस सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल को साइन किए, तब ये जाकर क्या माना जाएगा, एनफोर्स. बात समझ में आ गई. मिनिमम 40 कंट्री, तब ये एनफोर्स हुआ. अब देखो, अब इस सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल के बारे में थोड़ी सी जानकारी कि क्या था आखिर इस सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल में. मैंने कहा लायबिलिटी एंड रिड्रेस था. तो क्या है लायबिलिटी एंड रिड्रेस क्लॉजेस विच इज फर्दर एडेड इन द कार्टाजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी थ्रू अ सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल. ट्राई टू अंडरस्टैंड. लिखा है यहाँ कि द सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल स्पेसिफाइज व्हाट, रिस्पॉन्स मेजर्स टू बी टेकन इन इवेंट ऑफ डैमेज. मैंने क्या कहा, आपने एलएमओ बेचा किसी दूसरी कंट्रीज को, वहां उसने एनवायरमेंट को डैमेज कर दिया या हेल्थ को इफेक्ट कर दिया, तो क्या होगा फिर. ठीक है, डैमेज टू द बायोडाइवर्सिटी रिजल्टिंग फ्रॉम एलएमओज लिखा है यहां. तो द competent authority in a party to the supplementary protocol must require the person in control of LMOs, that is operator, to take a response measure, or it may implement such measure itself and recover any cost incurred from the operator. बात समझ में आ रही है. जो LMO को ऑपरेट कर रहा है पार्टी, कंट्रीज या कंपनीज, उसके ऊपर लायबिलिटी है, उसे डैमेज या उसे कॉम्पनसेशन एनकर करना पड़ेगा. अगर आप तैयार हैं तो आप एलएमओ सेल परचेज करिए, अगर तैयार नहीं है तो फिर प्रॉब्लम. यू मस्ट नॉट अलाउड बाय बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस. आपको क्लियरिंग देगा ही नहीं. ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, डैमेज कंपनसेशंस भी ऐड हो गया. इंपॉर्टेंट है, समझ आ रही है बात है. नेक्स्ट लिखा है कि द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम हैज डेवलप्ड guidelines that countries can use in the development of their domestic laws on liability, response, action and compensation for damage
caused by activities dangerous to the environment. यूएनईपी ने क्या कहा कि सभी कंट्रीज अपने अपने लॉज बना लीजिए, अगर एनवायरमेंट डैमेज होता है तो आप क्या मेजर्स लेंगे. इफ द कंट्रीज आर पार्टीज टू द CBD, इफ द कंट्रीज आर पार्टी टू कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल, इसीलिए मैंने कहा भारत ने 2002 में क्या बनाया, बायोडाइवर्सिटी एक्ट, और नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी डेवलप किया. उसी एक्ट में है कि एक अथॉरिटी बनाई जाएगी और भारत सरकार ने वो अथॉरिटी भी बनाई. नाम क्या है अथॉरिटी का, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी. तो क्वेश्चन उसके ऊपर भी आता है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के ऊपर भी आएगा और नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के ऊपर भी आएगा. इंडिया के स्टेप्स पढ़ोगे टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी तो उसमें वो भी आएंगे. What are the legislative measure the India has taken to conserve the biodiversity, because India is party of the CBD. ठीक है. तो जब आप एक टॉपिक को एक्सप्लोर करना शुरू करते हो तो उसके अंदर काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं, और करंट तभी आप बेहतर समझ सकते हो जब आप पॉइंट्स क्लियर हो, जब आपका बेसिक्स फाउंडेशनल उस टॉपिक के बारे में आइडियाज क्लियर होगा, देन एंड देयर यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन द रिसेंट मीटिंग एंड द रिसेंट पास्ट. तब व्हेन यू रीड आर्टिकल देन योर आइडियाज मस्ट बी वेरी क्लियर एंड यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन. अदरवाइज इफ यू वोंट लर्न अबाउट द बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल, तो एलओएमएस के ऊपर क्या मीटिंग में कहा जा रहा है, क्या रिड्रेस हो रहा है, लायबिलिटी क्लॉजेज आपको पता ही नहीं है, तो किसको लायबिलिटी लेना है, किसको नहीं लेना है, किसको देना है. आप BCH के बारे में जानते ही नहीं हो तो LMOs को ट्रेड परचेज करने के लिए पहले क्लियरेंस चाहिए, आपको पता ही नहीं चलेगा ये सब. और हर मीटिंग में इन्हीं के ऊपर नया चेंजेस होता रहता है, नए डिस्कशन होते रहते हैं, एग्जिस्टिंग को ही मॉडिफाई करते हैं. ऑल टुगेदर न्यू कॉन्सेप्ट बहुत रेयर आता है. ओके, एंड दैट्स व्हाई आई एम इन्वेस्टिंग टाइम फॉर द क्लैरिटी ऑफ दिस टॉपिक. So if you won't sincerely listen it, you miss the point and you won't understand what is going on in a contemporary world. And the questions is sometimes in the mains or in majority of the time, often when you look at, is based on contemporary scenario. ठीक है ना. और स्क्रीनिंग में भी कुछ कन्वेंशंस आपको पूछेंगे, यानी कन्वेंशनल क्वेश्चन भी होगा और कंटेम्प्रेरी उसमें लिंक्स होंगे, ये रिसेंट मीटिंग में क्या हुआ. ठीक है. तो बैलेंसिंग इज रिक्वायर्ड वंस यू आर प्रिपेयरिंग. और कुछ टॉपिक जो बहुत डायनेमिक है, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, इकोनॉमिक्स, तो यहाँ आपको बहुत विजिलेंट होना होता है. अब ये टर्म ही अगर ए नहीं पता है या LMOs FFP, तो आप भूल जाइए कि कई क्वेश्चन आप कर ही नहीं पाएंगे. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट, नागोया. Again, this Nagoya protocol is important. Okay. तो नागोया में पहली चीज तो एक तो सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल साइन हुई. कार्टाजेना की जो बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल है उसमें लायबिलिटी और रिड्रेस क्लॉज भी जोड़ा गया. उसके अलावा भी और भी चीजें हुई नागोया के अंदर, उसे भी जानना है आपको. तो मैंने क्या कहा कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जाकर देखोगे तो CBD से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हैं उसमें कार्टाजेना और नागोया पर ही क्वेश्चंस काफ़ी टाइम आए. ठीक है, क्योंकि ये बेस है. तो लेट्स अंडरस्टैंड नाउ इन डिटेल. COP10 कौन सी मीटिंग थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 10th नंबर की. पहला COP किस ईयर हुआ, नशाऊ में कब हुआ. अभी क्या बोला था, फर्स्ट नशाऊ में हुआ था COP1. टेल मी. 1992 देयर वाज अ अर्थ समिट इन रियो डी जेनेरियो. COP नहीं हुआ था 1992 में. क्या ऑनलाइन में जो लोग जुड़े हैं मेरे से मेरी क्वेश्चन सुन रहे हो.
Anyone here? Divyani, Ashish, Atharva, Mohit, Pawan. Am I audible? 2003. 2003. First cop. अभी सब सो रहे हैं, सभी सो रहे हैं। नहीं, अच्छा है, कैमरा ऑफ करके आप लोग सोते रहिए। मतलब सभी लोगों के लिए ना अलग अलग ईयर हो गया। अभी तो डिस्कस किया यहाँ पे व्हाट इज रिटेन हियर। नशाओ मैं बोल भी तो रहा हूँ आपको। अभी तो टाइमलाइन भी लिखा था 1992 द फर्स्ट समिट, रियो समिट, जहाँ पर सीबीडी open for signature when it was enforced in the year 1993. After enforcement, the first meeting held of the conference of parties in the year 1994. So try to link, try to generate the link. That is very very important. The timeline is important as I have said. और उसको एकदम सेपरेट पेपर पर अलग ड्राफ्ट करके लिख लीजिए, अदरवाइज अभी पढ़ा अभी कंफ्यूजन है। 2 4 6 महीने बाद और 1 साल बाद जब पेपर दोगे तब तो फिर क्योश ही क्रिएट होगा। ठीक है, तो डोंट टेक लाइटली। तो ये नहीं क्लास में। इतनी एनर्जी लगा रहा हूँ इस टॉपिक को, मैं फिनिश कर देता। अगर मैं लाइटली लेता लाइक अदर्स टीचर्स तो आई कैन फिनिश बायोडाइवर्सिटी इन सिंगल लेक्चर, आपको सुपरफिशियल स्टडी कराकर। और तभी भी आपको समझ नहीं आता, उतना भी दे देता मैं कि जिससे पीटी निकल जाएगा। बट प्री निकाल कर कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं कर लोगे लाइफ में। आपको मेंस क्वालिफाई करना है एंड यू हैव टू फेस द इंटरव्यू where they asked about the contemporary scenario, what is going on. Without understanding the basics, you cannot able to speak and tell anything about this topic anywhere. अब वो जमाना गया जब थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी 5 पॉइंट बोल दिया। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बदलता जा रहा है, तो ठीक है ना, मार्केट में बहुत स्मार्ट बच्चे हैं। सो रिसेंटली गिव द टाइम और थोड़ा सा सीरियसली पढ़िए। ठीक है, so the Nagoya Protocol on access to genetic resources and benefit sharing. प्रोटोकॉल का एजेंडा क्या है यहाँ, किस चीज के ऊपर प्रोटोकॉल है? ठीक है, एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज एज वेल एज बेनिफिट शेयरिंग, इसके ऊपर एम्फेसिस है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल के ऊपर क्या था? बायो सेफ्टी। What do you mean by if you are handling the biodiversity, you must be handle it safe? There is a difference between both these protocol. Try to understand and be clear. So the first protocol of the Cartagena was keeping in mind, once a country is handling the biodiversity, the living modified organism, that is also the part of biodiversity, then they must handle it very carefully. They must understand that this LMOs, if create harm, poses harm or threat to the environment, how we can handle it, who will take the liability. For that, the Cartagena Protocol on Biosafety has prepared, drafted. And what is the purpose of Nagoya Protocol? How you have to handle what the genetic resources, okay, as well as the benefit sharing. क्या किस चीज का benefit sharing of the biodiversity? Okay, now because the biodiversity, as I have said, that economically very important. Okay, so at the 10th conference of the parties, COP is known as Conference of Parties, 10th number, which was held at Nagoya, Japan in the Aichi prefecture. Now held in Nagoya, Japan in October 2010, and the Nagoya Protocol on access to genetic resource and the fair and equitable sharing of benefits arising from their utilization was adopted. Okay,
वन ऑफ द थ्री ऑब्जेक्टिव, आपको याद होगा 3 ऑब्जेक्टिव मैंने पढ़ाया था। पहला क्या, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, दूसरा क्या पढ़ाया था, सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और तीसरा क्या पढ़ाया था, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग, याद होगा। तो ये किसके लिए है, वो तीसरा जो प्रिंसिपल हमने पढ़ा था सीबीडी का, उसको अडॉप्ट किया एक अलग प्रोटोकॉल बनाकर। कब बना वो प्रोटोकॉल, 10th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में। इतना समय लग गया। Journey begins from 1994. It was enforced in the year 1993. The first meeting was held in the year 1994, but adopt करने में थर्ड प्रिंसिपल को कितना समय लग गया, 2010। आप समझ रहे हैं ना, नेगोशिएटिंग प्लेटफॉर्म पे बैठोगे तो पार्टीज एक दिन में तैयार नहीं होती किसी चीज के लिए, समय लगता है, वक्त लगता है। So this year 2010 is a very landmark year in the history of conservation of biological diversity. Why? Because a new protocol has been designed, drafted and adopted by the parties at Nagoya, Japan. And that's why it is also known as Nagoya Protocol. Okay. Other two main goals I have mentioned here, conservation and sustainable use. For that already the things has been developed. Intergovernmental committee बन चुकी है पहले, BCH बन चुका है, LMOs के ऊपर साइन हो चुकी है, इसके लिए मेजर्स लिए जा चुके हैं। थर्ड के लिए नहीं था तो लिया गया, ठीक है। नाउ अब है कि नागोया प्रोटोकॉल से क्या बेनिफिट आ गया, अब इसके ऐड होने से और क्या फायदे हुए या नुकसान हुआ, अब इसको देखें, क्रिटिकल एनालिसिस करो, ठीक है। तो लेट्स फाइंड आउट। The Nagoya Protocol further builds on the access and benefit sharing provisions to the CBD by creating greater legal certainty and transparency on both providers and user of genetic resources. Okay, as I have said that only when you look at the geographical area, so geographical area of 2 to 3% region of the entire global area having the 60% biodiversity. 36 hotspot region के बारे में डिस्कस किया। When the Norman Maier came with the concept, तब 10 ही थे। He identified only 10 in the year 1988. अब उस समय जब उन्होंने आइडेंटिफाई किया 10, आज 36 है। उन 36 देशों में मोर देन 60% बायोडाइवर्सिटी लाई करती है ग्लोबल, यानी अर्थ के ऊपर रिस्ट्रिक्टेड ज्योग्राफिकल एरिया में हाई बायोडाइवर्सिटीज है, लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज आर देयर। जब लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज उसी ज्योग्राफिकल एरियाज में रेस्ट्रिक्टेड हैं, तो फिर क्वेश्चन आएगा इक्विटेबल शेयरिंग का, आएगा कि नहीं? क्योंकि मैंने क्या कहा कि जब आप हिस्ट्री ऑफ दिस डिफरेंट कंट्रीज पढ़ोगे, तो देयर वाज अ फेज ऑफ imperialism and colonialism. Once you understand the colonialism, why the countries, the powerful countries had developed the colonies to extract the resources. So the powerful economy of the world right from the beginning has adopted different measures to harness the resources. They exploited the resources of the underdeveloped and the weak economies. Equitable sharing नहीं लिया, उन्होंने harness किया. Like the British has drained the wealth of India and the resources from India for almost 200 years. बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो क्वेश्चन ये है कि इससे कैसे प्रोटेक्शन मिले इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड। उसके लिए तो कुछ मैकेनिज्म डेवलप करना होगा ना, कि बेनिफिट्स मिले उन देशों को जहां डाइवर्सिटी है, पता चला आप लेके निकल लिए, या फिर अगर ये देश भी मना कर देंगे कि मैं नहीं दूंगा, तो उन देशों का कहां क्या होगा जहां है ही नहीं डाइवर्सिटी, उन तक भी पहुंच होना चाहिए। जहां ज्यादा है वहां से उनको भी ट्रांसफर होना चाहिए, ऐसी भी मैकेनिज्म हो, और जो ट्रांसफर करे उसको उसका बेनिफिट भी मिले, ऐसा भी मैकेनिज्म हो।
इसलिए वर्ड है फेयर, अनफेयर नहीं, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग. गेटिंग माई पॉइंट, व्हाई दिस protocol has adopted? Due to the what? Inhomogeneous or inequitable distribution of genetic biodiversity. Getting my point, why we had developed this? Okay, so it does, so that's why what, under this protocol there is emphasis on the legality. Laws बनाने पड़ेंगे, ठीक है. It does this by establishing more predictable condition for the access to genetic resources and helping to ensure benefit sharing when genetic resources leave the contracting party providing the genetic resource. क्या है प्रोविजन इसके अंदर? ये इंश्योर करना कि प्रेडिक्टेबल कंडीशन ऑफ शेयरिंग हो और बेनिफिट ऑफ शेयरिंग एंश्योर हो. मैंने क्या कहा, अभी तक डेवलप्ड इकोनॉमी थी, imperialism or in era of colonialism, they started harnessing the product, just they squeeze out, drains the wealth और उसका बेनिफिट नहीं दिया. इसको पुअर इकोनॉमी को, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं दिया, कई सालों तक नहीं दिया उन्होंने कोई भी बेनिफिट. अब ऐसा नहीं होगा. क्यों? क्योंकि नागोया प्रोटोकॉल का यही एजेंडा है कि अब डेवलप इकोनॉमीज जो है डेवलपिंग के रिसोर्सेज को अगर लेते हैं तो उसको क्या करेंगे, को देंगे, उस रिसोर्सेज के बदले बेनिफिट्स शेयर करेंगे. ठीक है ना. नाउ व्हाट कम्स अंडर जेनेटिक रिसोर्सेज? ऑल द प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. बिकॉज अभी मैंने क्या कहा, जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी यूज कर रहे हैं. ठीक है ना. इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग में वी आर ऑल्सो यूजिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. यस्टरडे आई हैड गिवन एग्जांपल ऑफ ईस्ट. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट जेनेटिक रिसोर्स है, because they have different gene which express and develop a different protein which is essential for the human being. ठीक है. इसलिए मैंने बताया जीन बैंक खुल गए हैं आजकल जेनेटिक कंजर्वेशन के लिए. दैट इज द ex situ conservation method to conserve the biodiversity. ठीक है. So in some cases traditional knowledge associated with genetic resource that come from indigenous and local communities. I had given example of the tribal ethnic community of the world. They are using different herbs as a medicinal herbs. तो अभी नागोया प्रोटोकॉल में उस बात पर भी एम्फेसिस की गई है कि लोकल इंडिजिनस कम्युनिटी के पास जो इंफॉर्मेशन और नॉलेज है एनिमल्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, उसे भी हम कैसे इस्तेमाल करें अपने डेवलपमेंट के अंदर. गेटिंग माय पॉइंट. हम उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं. देयर इज अ trust over that also under the Nagoya protocol. So what I have mentioned here, in cases traditional knowledge, they shared the knowledge, they inherit the knowledge from one generation to another. उन्होंने कोई बुक नहीं लिखा है बट वो यूज करते आ रहे हैं कई जनरेशन से उस ट्रेडिशनल नॉलेजेस. ठीक है. उसको भी क्या करना है कि that provide valuable information to researcher regarding the particular properties and values of these resources and their potential use for the development of, for example, the medicine or the cosmetics. इसकी डिमांड है ना मार्केट में मेडिसिन और कॉस्मेटिक्स की, और इसको कई वर्षों से कुछ ऐसे एथनिक और इंडिजिनस कम्युनिटी जानते हैं, कुछ ऐसे पौधों के बारे में जिसको मॉडर्न कम्युनिटी नहीं जानती, वो यूज कर रहे हैं. उस इंफॉर्मेशन को भी लेकर आना, उनसे बात करना, एक मैकेनिज्म डेवलप करना, एक लीगल सिस्टम डेवलप करना कि इनको भी बेनिफिट मिले. ऐसा नहीं कि उनसे आइडिया लेकर तुम इंडस्ट्री ग्रो कर दो, उनको बेनिफिट ही नहीं मिले. दैट ट्रेडिशनल कम्युनिटी मस्ट गेट बेनिफिट. बिकॉज अभी क्या हो रहा है, फिर वही बात है कि वो पुअर है, उनको पता नहीं है कि ग्लोबली
इसकी डिमांड जो है वो इंफॉर्मेशन या नॉलेज रख रहे हैं उनकी डिमांड कितनी है, और आपने उनसे वो नॉलेज ले लिया और आकर आपने उसका इंडस्ट्रियल यूज और कमर्शियल यूज कर लिया, आप बिलियनियर बन गए और वो अभी जंगल में ही घूम रहे। ऐसा नहीं होगा। ये नागोया प्रोटोकॉल कहता है उनके साथ भी बेनिफिट शेयर करो, उनके नॉलेज लो, उसका कॉमर्शियल यूज करो या उसके रिसर्च में इस्तेमाल करिए, लेकिन बेनिफिट उनके साथ भी शेयर करिए। ठीक है, and that is very important part. Now various NGOs are working on it and they are providing the benefit share to that community, those who are living in a remotest part of the world. Okay, so this protocol is also keeping in mind the biopiracy which is going on, or the theft of intellectual property. ये तो चुराना हो गया ना, आपसे आइडिया लेके मैं बन गया पैसे वाला, आपके आइडियाज आप देके आपको समझ ही नहीं आया। ठीक है, तो इसके ऊपर भी रेगुलेशन है इस प्रोटोकॉल में, समझ में आ रही है बातें। एंड यूजर ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज इंक्लूड रिसर्च एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन एंड प्राइवेट कंपनीज ऑपरेटिंग इन वेरियस सेक्टर्स सच एज फार्मास्यूटिकल्स, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, कॉस्मेटिक एंड बायोटेक्नोलॉजी कैन यूज दैट। समझ रहे हो? So they are also the party of the protocol for the fair and equitable sharing. तो यहां लिखा है कि when a person or institution seeks access to genetic resources in a foreign country, ठीक है, if you are opening your company for a pharmaceutical products as well as cosmetic products, आपने देखा कि साउथ अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया में कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जिसको हम लेकर यूज कर सकते हैं, वो जेनेटिक रिसोर्स आप यूज करना चाहते हैं, तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन है? इट शुड ऑब्टेन, क्या लिखा है? द प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट ऑफ द कंट्री इन विच द रिसोर्स इज लोकेटेड। पहले आपको कंसेंट लेना है, पहले क्या होता था? थेफ्ट भी होता। अभी आप कर लेंगे तो द एक्शन विल बी टेकन। So first of all, if you wanted to purchase the genetic resource from any other country, first of all, you have to take the consent from that country. Without consent, you cannot purchase. Okay, पहला clause है ये. Under this protocol, Nagoya Protocol, what we are learning? Nagoya Protocol. And this is one of the fundamental principle of access and benefit sharing. Moreover, the person or institutions must also negotiate and agree on the term and condition of access and use of this resources with that country. उन कंट्रीज के साथ वो क्या करेंगे? टर्म एंड कंडीशन भी साइन करेंगे, लेकिन सबसे पहला स्टेप क्या है? यू हैव टू टेक कंसेंट. You have to forward the application to the concerned ministry or department or whatever be the institution in that country. If that country give you the consent, then you can negotiate for that product. Okay. This includes the sharing of the benefits arising from the use of this resource with the provider as a prerequisite for access to the genetic resource and its use. और अगर वो genetic resource यूज कर आप बेनिफिट कर रहे हो एक्रू, तो उसका शेयर भी देना पड़ेगा जिस कंट्री से आप ले रहे हो। या तो आप पहले नेगोशिएट करके दे दीजिए एक बार में अमाउंट, या फिर आप करिए जैसे भी उसका नेगोशिएशन होगा. कन्वर्सली द कंट्रीज व्हेन एक्टिंग एज अ प्रोवाइडर ऑफ जेनेटिक रिसोर्स शुड प्रोवाइड फेयर एंड नॉन आर्बिट्ररी रूल्स एंड प्रोसीजर फॉर एक्सेस टू देयर जेनेटिक रिसोर्स. अब ये क्या रूल है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं कंट्री हूं, मेरे यहाँ जेनेटिक रिसोर्सेज है, मुझे जेनेटिक रिसोर्स देना है डिफरेंट कंट्रीज को, एक रूल बनाना है. ऐसा नहीं कि आप डेवलप कंट्री हैं आपके लिए अलग रूल बनाऊंगा, ये अंडर डेवलप्ड है इनके लिए अलग रूल बनाऊंगा, वो डेवलपिंग है उनके लिए अलग रूल बनाऊंगा. ऐसा नहीं कर सकते. अंडर दिस प्रोटोकॉल यू हैव टू डेवलप अ सेम रूल फॉर ऑल द पार्टीज, तभी फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग होगा. बात समझ में आ रही है कि नहीं?
तो ये भी प्रोवाइडर के ऊपर ये भी क्लॉज है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग पार्टीज के लिए अलग अलग रूल तुम बनाओ, ठीक है। तो सीबीडी में ये अलाउड नहीं है। इफ यू आर द पार्टी ऑफ कन्वेंशंस यू कैन नॉट डू दैट, इफ यू आर द पार्टीज ऑफ नागोया प्रोटोकॉल यू कैन नॉट डू दैट। आपने नागोया प्रोटोकॉल साइन किया तो आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको यू हैव टू ड्राफ्ट अ सिमिलर लॉज और रूल्स फॉर ऑल द कंट्रीज टू whom you are sharing your genetic resource. Am I clear? समझ आया? ठीक है। नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ यूजेस। यूज का कुछ एग्जाम्पल दिया है, बेनिफिट शेयरिंग का भी एग्जाम्पल दिया है कि तुम्हारे अंदर क्लैरिटी आए। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल दिया, द डेवलपमेंट ऑफ द कंपाउंड called calenolites derived from the latex of a tree। ये ट्री से क्या होता है, ट्री का बार्क हटाओगे तो लेटेक्स निकलता है, एक जूस निकलता है, ड्रॉप्स, जो कि बहुत विस्कस होता है, गाढ़ा होता है, ठीक है ना। स्पीसीज का नाम, उस प्लांट का नाम क्या है, कैलोफाइलम। तो कैलोफाइलम से लेटेक्स निकलता है, उस लेटेक्स से क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, कंपाउंड क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं, वेयर इट इज फाउंड, और इसका यूज क्या है, HIV are of various type 1 and certain type of cancer। तो अगर आप ये ट्री का लेटेक्स एज अ प्रोडक्ट सेल करते हो तो आपके ऊपर क्या होगा, यू हैव टू ड्राफ्ट अ सिमिलर रूल फॉर ऑल द कंट्रीज। इफ द Malaysia drafted a rules to sell this product, they have to create a same rule for all the countries। Getting my point? And if the countries are purchasing to develop this, they will provide the benefit to them। Okay, now the use of indigenous plant resources for the breeding programs and cultivation, the so called Mona lavender, another species, okay, a hybrid of the two Plectranthus species indigenous to the South Africa। ये स्पीसीज प्लेक्ट्रैंथस कहाँ की स्पीसीज है, इंडिजिनस साउथ अफ्रीका की, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर साउथ अफ्रीका कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वहां की ये इंडिजिनस स्पीसीज है, ठीक है। और उससे एक हाइब्रिड तैयार किया, क्या नाम है उसका, मोना लैवेंडर, ठीक है। now is now commercially available as an ornamental plant throughout Europe, US and Japan। अब इसे सजावट के तौर पे कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट की तरफ। डेवलप्ड कंट्रीज में इसकी डिमांड बढ़ गई है, इस हाइब्रिड की, जो इस पौधे से तैयार की गई है। बात समझ में आ रही है, ये पौधा इंडिजिनस कहाँ का है, साउथ अफ्रीका का। तो अगर इसकी डिमांड बढ़ी तो उसका बेनिफिट साउथ अफ्रीका को मिलना चाहिए। इस बात पर ध्यान दिया गया, इसके लिए ड्राफ्ट किया गया प्रोटोकॉल दैट इज नोन एज नागोया प्रोटोकॉल on fair and equitable sharing of genetic resources। Am I clear? So I had given two examples. There are lots of examples, lots of variety of example। Now example of benefit sharing, ये तो चलो product sharing था। Research exchanges, a researcher from a provider country जो genetic resource provide कर रहे हैं collaborate with the research staff from the user countries, and both are researching over the, if I am purchasing your genetic resource, the scientists of your country and my countries are collaborated and develop a mechanism and share the benefits of that, जो भी benefit accrue कर रहे, ठीक है, like that।
प्रोविजन ऑफ, और इस नागोया प्रोटोकॉल में और भी क्या है, प्रोविजन ऑफ इक्विपमेंट, इंप्रूवमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड शेयरिंग टेक्नोलॉजीज. So much more genetic resources you can harness and you can share the benefit and develop it at a commercial level. पर्पस क्या है, नए इक्विपमेंट बनाने का, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी से और बेहतर जेनेटिक रिसोर्सेज के प्रोडक्ट आप डेवलप कर सकते. दूसरा क्या है, पेमेंट ऑफ रॉयल्टीज. जैसे बुक आप लिखते हो तो बुक की रॉयल्टीज पब्लिशर देता है. दैट इज योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. So if the product is the native or indigenous to any country and the country has given you, तो आपको रॉयल्टी देनी पड़ेगी, आपको पैसा देना पड़ेगा, उसके बेनिफिट शेयर करने पड़ेंगे. ये भी है इसके अंदर. और क्या है, प्रेफरेंशियल एक्सेस फॉर द प्रोवाइडर कंट्री टू एनी मेडिसिन डिराइव्ड फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्स एंड एसोसिएटेड ट्रेडिशनल नॉलेज. दूसरा क्या है, इफ यू and me are in contract, you are the, I am a provider country, I had also provide you the traditional knowledge which is existed in my country. But if you are using my traditional knowledge as well as my genetic resources, then you have to give me the royalties. तो प्रेफरेंसेस देना है यहाँ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के साथ. आपके ट्रेडिशनल वैल्यूज भी जो आपके एथनिक और इंडिजिनस पीपल जानते हैं, उसको अगर आपको पता चल गया है तो आप शेयर करेंगे उस पार्टी से, लेकिन उसकी जो कॉमर्शियल वायबिलिटी होगी तो आपको भी जो यूजर पार्टी है वो उसके बेनिफिट्स देगा. ठीक है. एंड ज्वाइंट ओनरशिप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. यहाँ क्लियरली मेंशन है ना कि मैं कोई आइडिया शेयर कर रहा हूँ, आप ले रहे हो, मेरे के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, मेरे पास वो नो हाउ नहीं है कि मैं इसे कैसे कॉमर्शियली डेवलप करूं, आपके पास वो टेक्नोलॉजी है, मैं शेयर करूंगा, तो हमारा ज्वाइंट कोलैबोरेशन होगा और मेरे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का आप रेस्पेक्ट करते हो, उसके बेनिफिट्स भी मुझे देंगे. ठीक है. अब मैंने यहाँ एक वर्ड यूज किया था कि इसे हम आयशी बायोडाइवर्सिटी टारगेट भी कहते हैं, जो नागोया में लिया गया. नागोया में प्लेस आयशी प्रीफेक्चर में ये मीटिंग हुई, तो इसलिए हम उसे कहते हैं आयशी टारगेट. आयशी इज अ प्लेस. तो एट नागोया, सो आयशी बायोडाइवर्सिटी टारगेट 2010. क्या टारगेट लिए गए नागोया में, 20 स्पेशल टारगेट लिया गया टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी. आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल द टारगेट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड. यहाँ ये जानना इंपॉर्टेंट नहीं है. से फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक टारगेट ये है जो 2015 में इनिशिएट किया गया कि ह्यूमन बीइंग का कोरल रीफ एरिया में इंटरवेंशन बढ़ रहा है, जिसके कारण कोरल डाई कर रहे हैं. यू आर पॉल्यूटिंग द एनवायरमेंट. तो कैसे उस स्ट्रेस को, ह्यूमन स्ट्रेस को, ह्यूमन प्रेशर को फ्रॉम द कोरल रीफ एरिया रिड्यूस करें टू कंजर्व द कोरल रीफ. दैट इज वन टारगेट in the ISC biodiversity target. I'm just giving you one idea. Like that there are 20 different targets. इस तरह से 20 टारगेट लिए गए to conserve what? Biodiversity. Where? At Nagoya in the Aichi prefecture. That is popularly known as Aichi target. तो ये वर्ड भी पूछा जाएगा. और कितने नंबर ऑफ टारगेट थे? 20. उसमें से 3 सबसे पहले टारगेट 2015 में क्या किए गए, स्टार्ट किए गए. दैट वाज किक स्टार्टेड इन 2015. 3 टारगेट, उसमें कोरल रिफ वाला भी था. उसके बाद 2020 में और 8 टारगेट को इनिशिएट किया गया. एक साथ नहीं, 20 के 20 टारगेट कंट्रीज ने शुरू कर दिए. 20 टारगेट के लिए नागोया में रेडी हुए और उस टारगेट को धीरे धीरे, नागोया में मीटिंग कब हुई थी? 2010 में. मैंने कहा कि पहला 3 टारगेट जो 20 में से था वो 2015 में शुरू हुआ. वो फर्स्ट 3 नहीं था, टारगेट नंबर 1, 2, 3 नहीं था, 15, 16, 17 थे, ऐसे थे. मतलब मीन्स 3 टारगेट आउट ऑफ दैट 23 टारगेट इनिशिएटेड इन द ईयर 2015 एंड लेटर 8 टारगेट इन 2020. 1920 से फिर आपको पता है कोविड सिनेरियो आ गया ग्लोबल. फिर मीटिंग ऑनलाइन हेल्ड हुई. कॉन्फ्रेंसेस और पार्टी तो आपको पता है ना कि इंटरनेशनली कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया था, आना जाना बंद हो गया था. तो क्या हुआ था? ऑनलाइन. तो 2020 के बाद फिर इनिशिएशन रुक गया. 19-20 में आप समझ रहे हो ग्लोबल त्रासदी थी, पैंडेमिक ऑफ कोविड. ओके. नाउ
द स्ट्रैटेजिक प्लान फॉर बायोडाइवर्सिटी कॉम्प्राइज्ड फॉर, विजन क्या तैयार किया गया है इसमें, आईसी टारगेट में क्या है विजन कि बाय 2050 बायोडाइवर्सिटी इज वैल्यूड, कंजर्व्ड एंड रिस्टोर्ड एंड वाइजली यूज्ड, मेंटेनिंग इकोसिस्टम सर्विसेज, सस्टेनिंग अ हेल्दी प्लैनेट एंड डिलीवरिंग बेनिफिट्स एसेंशियल फॉर ऑल पीपल। देख रहे हैं कितना ब्रॉडर विजन है। 2050 तक ऐसे स्टेप्स लेने हैं कि आप बायोडाइवर्सिटी की वैल्यूज को सभी तक पहुंचा सको। द जनरेशन मस्ट अंडरस्टैंड, मस्ट अवेयर अबाउट द वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी। द फर्स्ट थिंग इज दैट अभी समझ रहे हैं, वो भी जान रहे हैं कि एक दो दिन में नहीं लोग अवेयर हो पाएंगे रिगार्डिंग द बायोडाइवर्सिटी एंड देयर इंपॉर्टेंस। कब तक का टारगेट है? 2050 तक का। और क्या टारगेट है? टू कंजर्व एंड रीस्टोर and wisely use, because you cannot put the moratorium over all the genetic resources or ecosystem resource services as well as the species diversity। आप यूज तो करेंगे ना प्लांट, आप यूज करेंगे एनिमल, रोक तो नहीं सकते क्योंकि कॉमर्शियल वैल्यूज है और आपको एज अ फूड और एज अ रिसोर्सेज उसकी नीड है, लेकिन वाइजली यूज करना है, ये एजेंडा है। ठीक है, so to create awareness, to restore and conserve biodiversity and to wisely use it, कब तक? 2050। this is the vision। फिर आपको पता है विजन के बाद मिशन भी होता है। so what is the mission? mission is here। what is the mission? take effective and urgent action to halt the loss of biodiversity। already we had loses lots of species, extinct हो चुके हैं, and many of the species are on the verge of extinction। they are under the critically endangered category। critically endangered में कितनी probability होती है लॉस की, बताइए जरा। हाँ हाँ, in how many year, in future कितने सालों में या कितने जनरेशन में आप लॉस करेंगे? definition, do you have idea? 50% loss in the next how many year? 5 year or a 2 generation। so that is these terms are important। so we are losing with a very fast rate। तो क्या करना है? halt लगाना है, रोकना है उस लॉस को जो हो रहा है। ठीक है, in order to ensure that by 2020 what we have missed this ecosystem are resilient and continue to provide essential services। essential services we need water, we need clean air, environment will provide। जंगल काट रहे हो, एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, वाटर पॉल्यूशन कर रहे हो, स्पीसीज डाई कर रहा है, कोरल डाई कर रहे हैं, कोरल ब्लीचिंग हो रहा है। तो कुछ एसेंशियल सर्विसेज की कॉन्टिन्यूसली सप्लाई होती रहे, इस बात को ध्यान में रखते हुए बायोडाइवर्सिटी लॉस को हॉल्ट करना है, रोकना है, ये एजेंडा है। 2020 तक का ही था ये टारगेट कि हम ऐसा रेजिलिएंट एनवायरनमेंट डेवलप कर सकें, बट स्टिल देयर इज अ प्रॉब्लम दैट क्या हो रहा है, जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उनके भी को लेकर प्रॉब्लम हो रही है। the soil is polluting, the water is polluting, the air is polluting। no? there is a crisis of food which is essential services provided by the nature, biodiversity। okay, so thereby securing the planet's variety of life, this is also a mission to secure the variety of life on this planet, contributing to human well-being, क्योंकि वो आपके ही बेहतरी के लिए। ठीक है, एंड पॉवर्टी इरेडिकेशन, दिस रिसोर्सेज इज हेल्प टू इरेडिकेट पॉवर्टी। नाउ टू एंश्योर दिस, pressures on biodiversity are reduced, ecosystem are restored, biological resources are sustainably used, and benefit arising out of utilization
of genetic resources are shared in a fair and equitable manner, adequate financial resources are provided, capacities are enhanced, biodiversity issues and values mainstreamed, appropriate policies are effectively implemented, and decision making is based on sound science and precautionary approaches. This is also conclusion. The mission you can write as a conclusion. कब पॉसिबल होगा? जब आप बेहतर पॉलिसीज बना पाओगे, जब आप इमीडिएटली रेस्ट्रेन करोगे, इकोसिस्टम लॉस को बचाओगे, रिस्टोर करोगे. जैसे आप एफॉरेस्टेशन करेंगे, डिफॉरेस्टेशन की जगह, पेड़ काटने की जगह पेड़ लगाएंगे तो इकोलॉजी रिस्टोर होगा. पॉन्ड फिलअप करने की जगह पॉन्ड बचाओगे. अभी वेटलैंड वी आर लूजिंग विद अ वेरी फास्ट रेट. आप अपने शहरों में जाके देखिए, सारे वेटलैंड धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन प्रेशर. एंड व्हेन वी आर लूजिंग द वेटलैंड, व्हाट, अंडरग्राउंड रिचार्ज विल हैम्पर, वो खत्म हो रहा है, तो पानी की कमी हो रही है शहरों में, हमें परचेज करना पड़ रहा है. ये वो एसेंशियल सर्विसेज है, वो एसेंशियल रिसोर्स है वाटर. यू कैन नॉट सर्वाइव अ सिंगल डे विदाउट वाटर. गेटिंग माई पॉइंट? Yes or no? Water is also habitat. Certain species are losing the habitat. If you are filling up the lakes and pond, the aquatic animals and plants and microbes are losing their habitat. Try to understand. So ecosystem restoration is also very much important. And there is a mission that we have to restore it. And for that, you have to develop the legislative measures. आपको laws बनाने पड़ेंगे, policies बनानी पड़ेंगी, काम करना पड़ेगा. Am I clear to all of you? Hope. What is another? To support countries in their effort to achieve the Aichi biodiversity target, the Secretariat of CBD, together with the various partners, is convening a series of capacity building workshops. वो 20 टारगेट के लिए क्या किया कि अलग अलग वर्कशॉप भी हुआ अलग अलग देशों में. क्या करने के लिए? अवेयरनेस जनरेट करने के लिए. अब देखो, ये तो चलो डिस्कस कर लिया. अब जो लास्ट मीटिंग हुई 2022 में, थोड़ी बात उस पर कर लें. यहाँ तक मैं बता के छोड़ दूंगा. अगली मीटिंग 23 में तो होगी नहीं, तो फिर 24 में होगी, तो आप कवर करेंगे व्हेन यू आर राइटिंग योर मेंस और प्री, क्योंकि ये एंड ऑफ द ईयर में होता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, तो आपके तब तक मेंस हो जाएंगे. देन यू फेस द प्रॉब्लम इन इंटरव्यू इफ यू क्वालिफाइड इन दैट ईयर. तो तैयार रहिए उसके लिए. अब देखो, एक नया फ्रेमवर्क बन गया. अभी तक हमने टारगेट क्या देखा? आयशी टारगेट, जिसमें 20 थे. मैंने 20 में एक आपको समझाया. 20 के 20 आपको याद रखने की बहुत ज़रूरत नहीं है. यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर. आप चाहेंगे तो मैं रिटन भेज दूंगा 20 टारगेट क्या, ठीक है ना? यू कैन रीड इट. और आप जा सकते हैं, CBD की साइट है, स्पेशली कंजर्वेशन ऑन बायोडाइवर्सिटी की अपनी साइट है, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं. वो आईशीष 20 टारगेट्स, ठीक है. अब देखो, जो 2022 में मीटिंग हुई वो था COP15. उसका नंबर क्या था? COP15. तो पहली चीज तो ये याद रहनी चाहिए कि कितने नंबर की COP थी. COP कितने नंबर का है? 15 नंबर का, ठीक है ना? 2022 में हुआ मीटिंग, ठीक है. कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क कहाँ हुआ? कुनमिंग में हुआ एंड मॉन्ट्रियल. अब देखो यहाँ पर क्या है कि ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क GBF अडॉप्ट किया गया. अब हमें ये GBF के सराउंडिंग्स क्वेश्चन होंगे. तो क्या एक वर्ड नया तुमने सुना? GBF. GBF क्या कहते हैं? ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क. अब एक नया फ्रेमवर्क प्रिपेयर हुआ. वेयर? लास्ट ईयर 2022. ओके, इन COP15, which is known as Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework, इसको कहते हैं. अब यहाँ देखो, under this framework there are 4 goals and how many targets?
यानी अब 20 टारगेट रिप्लेस हो गए, अब कितने टारगेट हो गए? 23। ऐशी टारगेट 20 था, अब ये जीबीएफ में टारगेट कितना हो गया? 23 हो गया। तो अब इस टारगेट के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। अब कॉप से रिलेटेड जब क्वेश्चन आएगा सीबीडी से, तो कितने टारगेट्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा? 23। लेकिन आपको कंपैरिजन पता होना चाहिए कि अच्छा ऐशी में 20 था, अब 23 है। ठीक है, जैसे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, फिर उसके 17 टारगेट्स, ऐसे आप पढ़ते हो, तो लाइक दैट। ओके, नाउ फॉर द अचीवमेंट बाय, और कब तक ये पूरा करना, तो ये ईयर भी आपको याद रखना है कि टारगेट वी हैव टू अचीव एट 2030। The UN Biodiversity Conference concluded in Canada's Montreal. The first part of COP15 took place in, पहला मीटिंग कहाँ हुआ? कॉनमिंग। फिर कहाँ हुआ? मॉन्ट्रियल। फिर क्या डेवलप हुआ? ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। इसलिए जोड़ दिया दोनों प्लेस के नेम, कुनमिंग, मॉन्ट्रियल, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। Both these places are two different places. The meeting held, first meeting at Kunming, China, and then Canada's Montreal. तो दो मीटिंग हुई है, एक जगह में ये ड्राफ्ट नहीं हो पाया फ्रेमवर्क, दो मीटिंग में ड्राफ्ट हुआ, इसलिए दोनों मीटिंग के नेम है। तो समटाइम्स दे सिंपली आस्क्ड अबाउट द ग्लोबल biodiversity framework, or they must also use the word Kunming Montreal Global Biodiversity Framework. Am I clear? Okay. Now, the commitment to address the biodiversity crisis and the Kunming Declaration was adopted by over 100 countries. How many countries has adopted the Kunming Declaration? Almost around more than 100 countries has adopted. Okay, now what are the key targets? How many targets are there? 23. But I had mentioned here only the key targets, not all. And what are the key targets? Let restore 30% degraded ecosystem. वर्ल्ड में जितने इकोसिस्टम डिग्रेडेड है, एटलीस्ट हम 30% को रीस्टोर कर सके। ठीक है, ये टारगेट रखा गया है। ग्लोबली ओवर द लैंड एंड सी, यानी एक्वेटिक इकोसिस्टम को भी लॉस पहुंचा है और टेरेस्ट्रियल को भी, दोनों मिलाकर 30% जितना लॉस हुआ है उसमें से 30% को रीस्टोर करना है, ये टारगेट है। ठीक है ना, कब तक? तो 2030 तक, 2030। दूसरा और एक 30% का टारगेट है, क्या है? कंजर्व एंड मैनेज 30% एरिया। इसको तो रीस्टोर करना है, जैसे जहां ट्री कट गई है तो फिर लगाओ, रीस्टोरेशन। यहां कंजर्व एंड मैनेज है 30% एरियाज, टेरेस्ट्रियल, इनलैंड वाटर एंड कोस्टल एंड मरीन वाटर। कब तक? बाय 2030। तो ये 30% फॉर्मूला याद रखेंगे, 30% रेस्टोरेशन, 30% कंजर्वेशन एंड मैनेज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ इकोसिस्टम, बायोडाइवर्स एरिया। ओके, नाउ फिर क्या है? स्टॉप द एक्सटिंक्शन ऑफ नोन स्पीसीज and by 2050 reduce the tenfold extinction risk and rate of all species including unknown also. पहले तो नॉन स्पीसीज जिसकी लिस्टिंग हो चुकी है, जिसके बारे में आप जानते हो और रिसर्चर जानते हैं, पहले तो उसको बचाना। जिसके बारे में नहीं जानते हो उसके लिए फिर ट्राई करना, उसके रिस्क थ्रेट जो जिस कारण से वो लॉस हो रहे हैं वो कारण के ऊपर वर्क करना, सो उनका रिस्क जो है रिमूव होने का, लॉस होने का रिड्यूस हो, इसके ऊपर वर्क करना भी एक टारगेट है। किसमें? GBF, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। व्हाट वी आर रीडिंग? द कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। हर बार ये वर्ड बोलोगे तो तुम्हें याद रहेगा, इफ यू आर रिपीटेडली यूज। Here this target we have taken in GBF. Here when it target is we take in GBF. ठीक है ना? आपको repeatedly when you are talking to anyone you use these terms repeatedly, so it will filter down in your memories. What is the another target of GBF? Reduce risk from the pesticides by at least 50% by 2030. Due to excessive use of pesticides,
several species we are losing. Several species of insects, pests, as well as pest or pollinator, we are losing in very quite fast rate. Microbials we are also losing. बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसके लिए भी तो अभी आपको पता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप या हम लोग वी आर मूविंग टुवर्ड्स द ऑर्गेनिक फार्मिंग like that, where we are using less amount of chemical, pesticide, insecticide, fertilizer and all. Okay, or we are developing the pest resistant varieties. Okay, so reduce nutrient loss to the environment by at least 50% by 2030. The environment also losing the nutrients, macro and micronutrients of the soil. We are losing because of soil erosion, degradation. I had discussed already. उसे भी बचाना है, वो भी क्या है GBF में एक key target है. What I am discussing, what are the key target which has been taken under this framework? What is reduce pollution risk and negative impact of pollution from all sources by 2030, all sources, whether it and to levels that are not harmful to biodiversity and ecosystem function. Reduce pollution risk, air pollution, water pollution, land pollution, noise pollution, whatever be the pollution which poses harm to the biodiversity, we have to control it. Now, reduce global footprint of consumption by 2030, including through significantly reducing overconsumption and waste generation and halving food waste. अभी आप देख रहे हो, there is a sensitizations develop that we are over exploiting the resource and we are creating lots of wastage. जितना wastage globally create होता है उसमें अगले कई सालों तक आप फीड कर सकते हैं ग्लोबल कम्युनिटी. आप जाके देखिए रेस्टोरेंट में कितने फूड बर्बाद होते हैं, पार्टीज में, फंक्शंस में, when we are talking about. Okay. And sustainably manage areas under agriculture, aquaculture, fishery, forestry, and substantially increase agroecologies, other biodiversity friendly practices, and tackle climate change through nature-based solution. Reduce the rate of introduction and establishment of invasive alien species. कम से कम introduce करना है, because these invasive alien species having bad environmental impacts, negative environmental impacts, and secure the safe, legal and sustainable use and trade of wildlife species and greener urban spaces, because urbanization is also increasing. Signatories aim to ensure USD 200 billion per year is channels to conservation initiative from public and private sources. Signatories कितना इंश्योर करेंगे पैसा? 200 billion US dollar by private or public mechanism for conservation of the biodiversity. क्योंकि पैसा भी तो चाहिए, फ्री में थोड़ी कंजर्वेशन रेस्टोरेशन होगा. कितना बिलियन पर ईयर जमा करना है? 200 बिलियन, चाहे आप सरकारी फंड से लाइए या प्राइवेट से लेकर आइए. और ये भी है, wealthier country should contribute at least 20 billions of every years by 2025 and at least 30 billion a year by 2030. तो डेवलप्ड कंट्री के ऊपर ज्यादा बर्डन है क्योंकि ओवर एक्सप्लॉयटेशन तो उन्होंने पहले से कर रखा है. अंतर समझ में आ रही है बात? व्हाई द एक्सेसिव बर्डन ऑन वेल्दियर कंट्री, डेवलप्ड इकोनॉमीज? क्योंकि उन्होंने ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया है रिसोर्सेस. कंट्रीज कमिटेड टू आइडेंटिफाई सब्सिडीज दैट deplete biodiversity by 2025 and then eliminate, phase out or reform them. अभी सब्सिडी देंगे हॉट स्पॉट रीजन जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, क्योंकि उनका डिप्लीट हुआ, ओवर एक्सप्लॉइट हुआ बाय डेवलप्ड इकोनॉमी, फिर वो सब्सिडी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी. अभी क्योंकि उनको रेस्टोर करने के लिए पैसा तो चाहिए होगा, ऑलरेडी डिप्लीट कर चुके हो उनके. And they agreed to slash those incentive by at least 500 US dollar billion a year by 2030 and increase incentive that are positive for conservation. ठीक है. और इंडियाज डिमांड जो है
वो मैं आपको भेज दूंगा। ये इंडिया की डिमांड थी जब इंडिया मीटिंग में बैठा। इंडिया कॉल्ड फॉर एन अर्जेंट नीड टू क्रिएट अ न्यू एंड डेडिकेटेड फंड टू हेल्प डेवलपिंग कंट्री। भारत कहता है ऐसे छोटे फंड से काम नहीं चलेगा, एक अलग से डेडिकेटेड फंड क्रिएट कीजिए और सारे डेवलपिंग कंट्रीज वहां से पैसा निकाल कर रेस्टोरेशन कर सके, क्योंकि ऑलरेडी डेवलप कंट्री के पास बहुत पैसा है और वही ओवर एक्सप्लॉइट कर भी रहा है, पहले भी कर चुका है। तो पहली भारत की डिमांड ये है और वो कई बार से कर रहा है। फिर उसने 15 में ये मुद्दा उठाया, कॉप 15 में आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, दूसरा मुद्दा क्या उठाया? सो फार द ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी, GEF इसको कहते हैं। जब अभी क्लाइमेट चेंज पढ़ाऊंगा तो मैं डिस्कस करूंगा, विच कैटर द मल्टीपल कन्वेंशंस इंक्लूडिंग द UNFCCC एंड UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन रिमेन द ओनली सोर्स ऑफ फंडिंग। ये फंड है ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी। तो अभी मैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज डिस्कस करूंगा, तो मैं बताऊंगा कि इसमें जो पार्टीज हैं, ठीक है, और जो UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण हो रहा है, डेजर्टिफिकेशन, उसके लिए अलग है कन्वेंशन। उन दोनों में जो पार्टी है उनको पैसे रिस्टोर करने के लिए किससे मिलता है? ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी से मिलता है। ये फैसिलिटी डेवलप की गई है, ये फंड डेवलप किया गया है। अब भारत कहता है इसके अलावा और भी फंड की जरूरत है, तब हम बायोडाइवर्सिटी और बेहतर कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि डेवलपिंग और अंडर डेवलप इकोनॉमी के पास पैसा नहीं है, और जो आप फंड बना रहे हैं 200 बिलियन का, वो सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, और इंडिया सेड द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी मस्ट ऑल्सो बी बेस्ड ऑन कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यही फॉर्मूला भारत ने कहा अप्लाई किया? क्लाइमेट चेंज में भी बोला कॉमन बट डिफरेंशिएटेड। यस, वी कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी एंड वी पुट, बट मेरा डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, तो हम सारे पे तो मोरेटोरियम नहीं लगा सकते, हम यूज़ करेंगे। आपने ज़्यादा यूटिलाइज किया तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए कहते हैं कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं भी कंजर्व करूंगा, मैं भी बायोडाइवर्सिटी में कंट्रीब्यूट करूंगा, लेकिन आपका रोल ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आपने पहले उसके बेनिफिट ज़्यादा उठाए। इसी फॉर्मूला को क्या बोलते हैं? CBD। और ये भारत का डेवलप किया हुआ फॉर्मूला है। क्लाइमेट चेंज के समय ही यहाँ पर भी वो भारत इस बात को उठा रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू इंडिया, डेवलपिंग कंट्रीज बेयर most of the burden of the implementing the target of the conserving biodiversity and therefore require adequate funding technologies transfer। बिना टेक्नोलॉजी के तो कंजर्व कर नहीं पाओगे, और टेक्नोलॉजी डेवलप के पास है, डेवलप आपको देंगे तो पैसा लेंगे, बोला हमारे पास है नहीं पैसा, तो ऐसा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मैकेनिज्म बनाओ जो हमें सस्ता हो, हमें फंडिंग की सुविधा प्रोवाइड करो, तो हम कंजर्व करने को तो तैयार ही हैं। ठीक है, एंड इंडिया इज नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली फॉर इंडिया बट फॉर द इंटायर अंडर डेवलप एंड डेवलपिंग इकोनॉमी, एंड दैट्स व्हाई इंडिया इज गेनिंग रिस्पेक्ट बाय दिस कंट्रीज इन द रिसेंट पास्ट। अब समझ में आ रही है बात है? सो वी हैव टू टॉक अबाउट द इंडियाज स्टैंड ऑल्सो। आपको ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द रिसेंट स्टैंड टेकन बाय द इंडिया इन or conserving the global biodiversity, or at international fora what is the demand by the India, or what is the apprehension of the developing countries. If such kind of a question appear, you must write. The first apprehension is the technology, the second apprehension is the lack of funding, the third apprehension is that who is over exploited? The developed countries. Who has the much more burden of this depleting biodiversity? On the developing country. ऐसे filter कर लो point, so you must write anytime, anywhere on these issues. Okay? Hope you can understand. तो चलो, एक और चीज़ें आप मेरे उस पे YouTube चैनल से एक टॉपिक होगा, प्रतीक ने डाला है वेटलैंड के ऊपर, आप एक बार वो वेटलैंड वाला वीडियोस देख लीजिएगा।